Hello, friends, and thanks for being on Vikas Jain live show. Today we have an amazing guest, Vibha. Thanks for being on the show. Thank you. Thank you for inviting For the benefit Vikas. of audience, thank you very much. For the benefit of audience, let me give you a quick introduction about Vibha. So, Vibha Gurtu is an author of the book Tara. That book itself has been featured in many great publications like Hindu, Dainik Bhaskar, and many more. She is a personality development and spiritual coach with 18 plus years of experience. And she is going to share how spiritual alignment is important for the relationship that matter. She is founder of Omtara Foundation, has been featured on GTV and many other publications as well. So looking forward to your conversation with Vibha. Thank you, Vibha, again for joining us on the show. Thank you. So Vibha, first of all, that these two things, that relationship matters and spiritual alignment, where you talk about that to have a good relationship, one need to have a relationship with self. Can you first explore that sentence itself? Yeah, because I always feel that everything mirrors, right? So, whatever we are, either we are seeking something similar or opposite to that. What is important is that what exactly going through in our soul levels, our learnings and our frustrations, our anger, our something, even if we are anxious, it is reflected somewhere outside. So, in that relationship, what matters is whatever is inside is somewhere it is shown and reflected in different forms. So, if you sort out your inner self, the outer self itself come to some peace, and it creates the same kind of wavelength or frequency or a rhythm which flows. So it's always internal and sometimes it's external too. Remember, जब हम छोटे थे और अगर हमारा मूड बहुत खराब होता था तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि भी अच्छा इतने दिन से क्यों मुंह उतरा हुआ है, जाओ मुंह हाथ धो, तैयार हो और बाहर निकलो। तो वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज होती थी कि हम अपने आप को तैयार करते थे और फिर सडनली जब शीशे में देखते थे तो एक खुशहाली आती थी। सो Wow. इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों चीजें अपना जो रिलेशनशिप है वो सारे रिफ्लेक्शंस हैं। दैट्स व्हाट आई मीन, रिलेशनशिप्स डू मैटर। Wow, that's a beautiful definition. But how do you still manage? Like, you on one side you are an image consultant, right? Where people talk about the artificial thing, the most of the things that we carry outside, and then the soul, the spiritual alignment. These two seems like two distance apart thing. How do you manage to club them in your work? First thing I would like to say, there's nothing like artificial as such. Even what is coming as artificial intelligence, as human intelligence, what has created the artificial, it's still the extension of it. So you can Okay. say external and internal. You can say materialistic and spiritual, or you can say where evaluation, how society evaluates and values what you have it internally. So with me is because something from the childhood, both the things, your inner peace, my inner peace, I was introduced to it in a very small age from my parents and my grandparents and everyone. And then how you conduct yourself, राइट। वो कहते हैं कि तुम खाओ खाओ मन चांदा और पहनो जैसे बोलता है, जैसे चाहता है, राइट। Right. So you eat your way but you dress up according to how people want to see you, and that's where the evaluation happens. That's when you step out of your comfort zone, your home zone, and then that's that's something, both are important because this is the earth reality. We have creative mind, we have amazing imagination, we have everything, but unless until it is put here in action and we can see it, we perceive it and we put it in action, that's what completes the circle, the loop, right? From creation to that action and happening, actually creating it. Today we are connected by this medium. Somebody imagined it. And today we have the laptop, we have the phone, we have everything. The mobile connects it, everything. So somewhere it's a both reality. And that's what interested me. So I love to So dress beautiful. up. I love to, you know,
how to make the best of it. So I got myself trained how to eat with knife and fork, how to talk, how to speak, how when exactly to change your, you know, your words also. And हम लोग तो उस लैंड से आए हैं जहाँ पे कृष्ण की बात होती है कि भाई आत्मा है, लेकिन आप हर स्थान के हिसाब से आप वस्त्र बदलते हैं। जैसे अभी जो क्या पहना बात, है मैंने और आपने, शायद अभी शादी में शाम को जाना पड़े, हम उसको बदल लेंगे, राइट? करेक्ट। और सुबह अगर पूजा के लिए जाना पड़े तो हम उसको भी बदल लेंगे। आई ऑलवेज से, एक तुम राजस हो और एक एक धोती में भी हो। सो दोनों चीजों को, उसका अलाइनमेंट, उसकी समझ, उसको अंडरस्टैंड और उसको बहुत खूबसूरती से बैलेंस आउट करना, ये बहुत मुझे अपील करा। और कहीं पर मुझे ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है, तो एक जगह मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती रही, दूसरी साइड से इमेज कंसल्टिंग एक टर्म आया और एक बहुत खूबसूरत अपीयरेंस बिहेवियर कम्युनिकेशन का पूरा एक, यू नो, लाइक अ ब्यूटीफुल पैकेज वाज देयर। सो आई गॉट माई सेल्फ ट्रेन्ड दैट इन दैट, एंड साइमल्टेनियसली माई spiritual journey had begun, you know, in 2000. So I could, this excited me, the external and internal, and internal and external, and let's put it together and bring the best both. We are humans. We exactly know how to become animalistic, go back to that. We understand, we sensitize. We have a soul. We understand how to dress up, you know, looking good. So feeling good. So that's how I put it together. वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। इट सीम्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। मतलब एक बार में सोच पाना कि अंदर की बात और बाहर की बात, लगता है कि दोनों दो अलग अलग दुनिया की बात चल रही है, बट हाउ ब्यूटीफुली यू हैव मर्ज्ड दीज बोथ वर्ल्ड। such a beautiful thing. So you mentioned about that what were your learning from grandfather, and just before we started the program you talked about the importance of this place as well जहाँ से आप live कर रहे हैं। तो just thought of if you want to share our viewer about that as well. So, Vikas, I come from a family, Kashmiri Pandits, and who were the pioneers of newspapers in 19th century. So, 1860 से 1946 तक, जब तक पार्टीशन हुई, so हमारे 3 अखबार निकलते थे। मित्र विलास जो हिंदी का था, अखबार आम उर्दू, और अर्जुना जो इंग्लिश के थे। सो इस तरह से रहा कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया, और फिर ग्रैंडफादर और उनके ब्रदर्स भी इसमें थे, और मेरे फादर भी एक जर्नलिस्ट, एडिटर, writer, all of them have been. And my father was also a trade unionist, and my mother was a teacher. So I come from a family of basically totally सरस्वती जैसे होते हैं। और ये लाइब्रेरी भी उसी में है कि यहाँ पे कोई 2000 से ज़्यादा किताबें होंगी। पहले हम लाइब्रेरीज में दे भी देते थे, बट अभी मैं, you know, like I feel so charged up when I'm here, and the front wall is like all my family history and everything, and the back and everywhere is the books, राइट एंड कमिंग, चाहे वो उर्दू में है, अरबिक में है, पर्शियन में है, संस्कृत में है, चारों वेद आपको मिलेंगे, पुराण भी मिलेंगे, और यहाँ पे क्या हर बात, धर्म की किताब, यहाँ पे गीता भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, कुरान भी है, और सब कुछ, सारा कुछ यहाँ पर आपको इस लाइब्रेरी में मिलता है। तो जब ऐसी कोई बातचीत होती है तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना यहाँ बैठा जाए और उन पूर्वजों का आशीर्वाद लिया जाए। और यहाँ पे कई बार कहते हैं एक स्थान पे बैठ के ही शायद वो चीज बरसती है आप पे, वो नेमत बरसती है। सो क्या बात। दिस इज द इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स वेरी क्लोज टू मी एंड माय सन्स बोथ, दिस प्लेस। ग्रेट, ग्रेट। तो दिस प्लेस इटसेल्फ इज वाइब्रेटिंग सो मच पॉजिटिव एनर्जी इन दैट सेंस। क्या बात, बहुत यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इट्स फॉर द information of our viewers, whenever you have any question you can type in the comment box below and we'll take up that with विभा। कि विभा आपके जितने भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, जो भी टॉपिक है उसके अराउंड, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपके मन में जो भी बातें आ रही हों, उसको हम डेफिनेटली स्क्रीन पे शोकेस कर सकें। वन ऑफ योर फ्रेंड is applauding and eagerly waiting to hear from Vibha. So this message we got from Chavi. So we are getting good messages from other peoples as well. So whenever you have any question for Vibha, do type in the chat box and I'll take it up once in a while. Now moving on to the next question. हम तो समझ गए कि आप इनर बेस्ट आउटर बेस्ट का काम करती हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि यू आर ए कोच पब्लिक वर्ल्ड में, यू डील विद बिजनेसेस, यू डू कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स एज वेल। बट उनको कैसे समझ आता है वो? सो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स दैट यू कैटर टू, किस तरह के क्लाइंट्स है जो आप तक पहुंचते हैं?
विकास, मेरी जर्नी बहुत ही ऑर्गेनिकली हुई। जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा वो होता है कि भई क्या गोल है, कैसे प्लान करना है, कहाँ जा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। ज़िंदगी में फ़ादर जर्नलिस्ट थे तो मैं जर्नलिस्ट बनी, मदर टीचर थी तो मैंने एमए, बीएड भी की और स्कूल्स में भी पढ़ाया। और इस तरह से कुछ बड़ी कि जहाँ पे विद्या से नाता रहा और लोगों से नाता रहा, क्योंकि ट्रेड यूनियंस की बेटी थी। सो आम जनता से, आवाम से जहाँ पे बैठ के किसी से भी बात की जाए, तो कभी ये नहीं सोचा था कि अरे! कोई बड़ा है तो ओह! तो क्या करना है? तो कोई छोटा है अपने से जो अगर पढ़ा नहीं है तो क्या कर, नहीं, 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 सब एक बराबर है, क्योंकि भाषा एक माध्यम रहा जहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। और मुझे एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी जो मुझे बहुत सिखाई भी गई और मैं सीखी भी, कि अगर कोई चीज़ तुम समझ गई हो, तो उस चीज़ को किस सरलता से तुम बता सकती हो कि एक छोटा बच्चा भी और एक अनपढ़ इंसान भी समझ पाए, तब तो मज़ा है उस चीज़ के कि तुम्हें सच में समझ आ गई। बट ये क्या रहा कि हम लोगों का, क्योंकि जनता बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना कुछ एजुकेशन में आ गया तो हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, फिर उसे ब्रेक डाउन करते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो मेरी Yes. जर्नी इस तरह से रही, क्योंकि वो नाता रहा, तो मैं हर तरह के लोगों के साथ मैं जुड़ी रही, तो चाहे वो एनजीओज़ हो, राइट? चाहे वहाँ पे यूथ हो, मैं छोटे बच्चों के साथ नहीं हूँ, पर 15 साल से ऊपर बच्चों के साथ, जब उनको अपने पीयर ग्रुप में या पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा मनमुटाव सा होता है, और कुछ एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन जो भी होती, उनके साथ मेरी तो स्कूल्स मुझे बुलाने लगे। और उसके बाद कॉर्पोरेट में ये हुआ कि सीनियर्स, when they started calling me, and they one to one this they wanted to sit with me. So I had developed this program, that ITP. तो पहले मैंने इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसे किया, फिर मैंने ITP किया। आई सेड इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ऐसा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी होती नहीं, हम बहुत आसानी से बोलते हैं, तो ट्रांजिशन प्रोग्राम। सो दैट थिंग वाज एक्चुअली विच सीनियर्स रियली लव्ड इट। सो वी वुड हैव अ टॉक, we would I would listen to them, I would open the ground to listen to them, right? And फिर वो वहां से उनकी क्या views हैं and what they wanted, and it started happening. And then corporate like IBM to JCB to Genpact to Tag to, I don't know, so many of them. Great. They started calling me NASCOM, and we were talking about empowerment. And then the finance ministry in GAF, they started calling me for the IS probationers, for international exchange programs, the officers, and the topics were, more of internal and outer balance again, right? So this is what my journey, it organically, but the fact was, now I feel that I kept moving, you know, and there was always a flow. So all kinds of clients come to me, the couples come to me, right? The seniors, the principals come to me of the institutes, the CEOs come to me, the chairpersons come to me, and besides the lectures in their places, and these are the people, and one to one youth contacts me. So Wow. it's relationship with oneself and relationship what they want to see in their company. That's what I handhold. That's what I say. I don't help as people. uh, I handhold them, I assist them, I empower them so that they see what exactly they wanted, and in sync with their vision and mission, what they want to negate, what they want to create new. And I assist them to cross over them and create new realities and make that happen for them. So I just assist them. So this is what I do. So that's what my work is. Wow. It's truly internal and external both. So some call me talk therapist, some call me, so they say, okay, let's walk and talk, and we go to Lodi Gardens and we walk and talk. So wherever what, so I always encourage that, let's talk. Let's see. I listen. I'm here. I open the ground where I'm non judgmental, where I won't tell you that you're wrong or not. If you want to bring it a change, when you are ready,
come and contact me. So all kinds of people, individuals to corporate, they contact me. And that's how I feel that this is my work. And I enjoy my work and I love it. वाओ! इंटरनल एंड एक्सटर्नल अलाइनमेंट आपने जितने आसान शब्दों में इन बातों को रख दिया, एज़ अ कोच माय सेल्फ आई नो कि इट्स नॉट ईज़ी, इट्स ईज़ियर सेड देन डन. But amazing. So, you talked about that you also do couple coaching, like couple comes to you, like for, and the program is relationship, where mostly we understand that, okay, relationship is more about husband-wife relationship. So any husband-wife relationship story that you like to cover, or any other client journey where you were able to create the kind of transition or the transformation, whatever you want to say. Okay, so both things I can tell you. Yeah. First, a senior, somebody contacted me in my office, received the call, and this person wanted to meet me. And he was a chairperson of a company, confidentiality retained. His son had heard me in one of the lectures in the colleges. And then, as a gift to his father, he said, go to Vibha, right? This man, he already had X number, if I say, he had crossed 100 CR already. And this is like around, um, this was in 2013, right? Oh, 10 years back, in fact. That was something really beginning. And that was a client which when he told me who he was, and it was like more than um, like whatever company, he had crossed 100 crores then only. And he said, Vibha, my son has referred, and I always feel that new generation, they exactly know what the father needs now, right? And we Mhm. talked, and it was a session from 10 sessions we chose that we would be talking. That's what I usually give. And those 10 sessions, where he became complacent, because for him, it was natural, it was a family business, right? Now the company had grown, it had grown, and he said, somewhere I've become complacent. I exactly don't know what is limiting me. And we started talking. And that's where it was something so interesting that I made him see what new he wanted, the new world which was outside, which his generation, his son wanted his father to become and to see, right? And that's where the gap was filling up, where we started talking what are the limitations, what was his mindset. Till he was working hard in the family business and he had reached here, he never realized. And suddenly he had hit there, and they became conscious that, oh, he's successful. Now he said, I didn't know. Okay, it is, but now what? I don't know. So he sulked, he was sulking. And he stopped going to office. And that's where the whole journey of one-to-one interaction began. So that's Oh, where internal and external story started. And the change, I made him see what exactly the new world wanted, what exactly he had the possibility to grow into. Till now, it was just a naturally he grew. And now the world was seeing him. He became conscious. This is what happens. The child is very happy. The moment everybody starts clapping, he just stops and says, why? What happened? What did I do? You understand? So that was yes. the thing. And we worked so much that he himself went through that transformation journey. And within 3, 4 years, he from X, he had crossed 3X. And I met his PA, his employees, and they said, ma'am, that's a new sir. So his outlook towards his staff, his employees, his core values, his soul to the company. Till now, it was money. And now the soul said, what next? So being into spirituality, I had to, introduce him to the soul of the company, that everything has a soul. From this pen this is my father's pen, to this room, to the plant, to the corporation, to organization, to the vision, everything has a soul. So that was where it opened eyes. And
the trans this is something, a story very close to my heart. And when the PAs, and then they come and then they say, ma'am, the new sir, we are so happy. He communicates because he had stopped communicating. He didn't know what to do. So we opened up his communication, retrieved his power, made him proud of himself and his family. And what all he was doing was fine, but the world is becoming, international. So what were the changes required from his outlook to his inner look, to his perception, to his perspective, to his attitude, and the soul, the whole, the value of soul, from values evaluation to values, everything. So that was one thing which I always hold very close to. And then he referred me to others too. So that was one story, which was very interesting, because he had already reached the, that top, and then I had to work in a different way. And we did not put any numbers that where do you want to reach, the Western world in next Yeah. 5 years. No, no, we didn't say. Nothing was mentioned. I was listening, and then he would ask a question and we were answering, and we were going through hand in glove with future, with the soul, with the values, with future, what the son wanted to see, what his father had in view, and then the whole thing to be aligned from the, as a tree of life, from the roots to the branch, to the trunk, to the branches, to the, to the fruits. So everything we did that, actually. So that was one thing, um, in a Wow. corporate, right? Such a amazing outcome, the success of and the transformation that this person achieved. It is Yes, truly yes, commendable, definitely. yes. And And coming from the employees, that I was just I had written that, the sir has changed. The sir is a new personality. He never used to talk so much. He interacts with us. He talks to us. The owner talks to us now and then, and we are so he makes us proud of ourselves. How the transformation happened. The wheel was lifted. So that's where. So this is something which this was very, very interesting for me wow, also. wow. Yeah. And And you also okay, talked about, yeah, please yeah, continue. tell me, Yes. tell me, tell me, tell me. You also talked about that every corporate, everything has its soul. So, but when you mentioned, what do you mean by corporate has its soul as well? What is the soul of a corporate? What is the soul of a company? So anything, whoever, I feel that when you are starting a company, it's a sole desire. Okay, let's say it's a SOLE, a sole desire. One man starts, and it Yes. becomes a soul desire. Oh, SOUL desire. Both. It's a soul desire, right? To start something of your own. It's everything. And then how you pick up people and how you pick up the vision. Sometimes we copy paste, and most of us, the whole world is copy paste. We don't even hmm, know हमारे कौन से ग्रंथ क्या है. हम हर चीज, शायद हम बातचीत भी कर रहे होंगे, चार चीजें किताबें पढ़ेंगे, अपनी तरह से करेंगे और फिर आगे करेंगे. जो प्रोग्रेस हो रहा है वो पीछे से लेकर आ रहा है, बेटर करके ला रहा है, राइट? हम कहते हैं कट कॉपी पेस्ट और कट एडिट paste, and it doesn't matter. What matters is when the edition, when you're editing something, that you're editing something, you're leaving a part of your soul desire. So the corporation, the organization, the people, everything, it's like product, finished product, and the people, the culture, that's a soul. that's so And beautiful. that's But what that holds value. And then we evaluate, it's a LV or something, or it's a Zara, where they hold their work, stores in the best of the places. And you find it like, wow. And everything is all our Indian made, everything made of India, everything has a soul. The tribals have their own soul. Everything, it continues, it is always alive, it thrives, atma. So in corporate also, because we don't create something कि हम 5 साल में, मतलब हम 2 साल में बंद कर देंगे, वो ठीक है, आजकल हम इवेल्युएट करके करते हैं, मकान ले लो hmm, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, आज मैं इतना डालूंगा उसका. That is something else. I'm not talking मतलब people business. plan the exit as well That's from the okay. beginning. And that is very beautiful too. जब लोग Yes. बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं है, this. I said, जब आप पैदा होते हो तो डेथ मुकर्रर है, right? That is also understood. The moment you're Yes. created, the death is the only certain thing, right?
So that is also fine. But till you are alive, that's what makes you thrive. So till you're alive, till the body, that organization, that website, that building, that place, that laptop, that everything, whatever inside it, the core has a soul. How you interact, what exactly you want uh, being understood or understand from the people who are working. Is that the integrity part? Is that the taxes we are paying with pride? Is that we understand, we are non-judgmental and we are growing? I understand you, and I you understand me, and let's grow together. Because this is the outer periphery. हम अर्थ से बाहर तो फिर चंद्रयान गया ना, गया तो अर्थ से ही बाहर ना, उसने Correct. पहली पिक्चर भेज दी ना, गया तो अर्थ रियलिटी से ना. सो अर्थ रियलिटी, उस कॉर्पोरेट की, उसमें वो सोल क्या है, वो मूवमेंट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है. और जब वो खत्म हो बहुत जाती सुंदर. है तो वो फिर सिर्फ एक निर्जीव शरीर रह जाता है और उसको जला दिया जाता है. सो जब तक वो है, उसके सोल पर्पस, every individual has a soul purpose besides earning money. Money is very important because that means profitability, and money is the basic, the survival. पैसे के बिना थोड़ी ना है. जमीन सबके पैरों के नीचे है, छत हर किसी के सिर के ऊपर नहीं होती. विकास. Yes. तो वो छत और जमीन का जो रिश्ता है, वो बीच में वो सोल है, वो आत्मा है, वो कॉर्पोरेशन, वो विजन की, वो चाहतों की, वो हर इंसान की जो तुम्हें सुबह हेलो कह रहा है, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो वैले हो, चाहे वो अंदर जाके आपके team members ho ya manager ho, everything. It has to be a collective consciousness which makes the core strong and the soul thrives or cries that I need to breathe, because it needs to breathe. So you know that corporate, sometimes they just strangulate you and you change them. Isn't that true? That's, So yes, this is yes. this is what I understand, that every corporate has a, every organization, every house, every, that's what makes home has a soul. So, in addition of writing the purpose, mission, vision statement, they should also start writing their sole purpose. Why not? That It's organization so of beautiful. AA having this sole purpose. Yeah. And here And, is SOLE नहीं की बात नहीं कर रहे, SOUL की बात कर रहे हैं. What is the sole purpose of your organization? और इस तरह से भी आना कि आत्मा हमेशा मुंह पे होती है. तो जब वो पूरा हो गया तो हम कॉम्प्लेसेंट फील करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं एचआर Hmm. में. समझ, इसका मतलब नए डायमेंशन की जरूरत है, नए क्रिएट करने की जरूरत है, नई रियलिटी क्रिएट करने की जरूरत है, फिर एक नए वस्त्रों को पहनने की जरूरत है, तो फिर वो चेंज हो सकती है. जिसको अंडरस्टैंड दैट. कॉर्पोरेट में ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. हाँ, कॉर्पोरेट में ट्रांसफॉर्मेशन बोल. तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बोथ आर इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाट आई फील. करेक्ट. Or yeah, relationship. And you asked me for the relationship. जैसे मैंने कहा, जो अपना होता है वैसे ही बाहर होता है. सो बहुत खूबसूरत है पति पत्नी का रिश्ता, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा साथ में रहा जाता है. बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और माँ बाप भी पूरे हो जाते हैं. सो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बहुत आते हैं मेरे पास, कपल्स आते हैं. अभी तो वो 80-20 रेशो है ना. 80% को मैं एक्चुअली कहती हूँ सब बकवास है यार, ठीक ठाक कर लो, कुछ नहीं होना, सब ठीक ठाक है, सिर्फ अपना नजरिया बदल लो. वो जो आई टेस्ट आप जाते हो वहां पे, अपने वो लेंस का जो टेस्टिंग होती है ना, आई टेस्टिंग, वो आपको टेस्ट करता है, फिर आपकी वो ऐनक बनाता है, बस वो लेंस चेंज कर लो, कोई चेंज नहीं होता. अडेप्ट हो सकते हो आप उसको, यू नो, लाइक यू कैन एडजस्ट इन अ वेरी ब्यूटिफुल कंपैटिबिलिटी कर सकते हो, right, instead of comparison or in being critical, you know. But you can't change anybody, right? Compatibility is so much more beautiful than anything else, right? Yes. So I always feel कि adaptability, compatibility, and और अगर नहीं हो रहा तो भी अलग चीज है. और 20% को मैं कह देती हूँ भाई ये नहीं होगा तो आज ही छोड़ दो, कल का छोड़ा आज ही छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसा भी कह देते मैंने हो. बाधा है. ऐसा भी कह देते हो. हाँ, मैं जब 2-3 बार मिलती हूँ मैं कहती हूँ भाई ये नहीं चलेगा. यहाँ यहाँ पूरा पर्पस ही अलग है. विजन, जो बेसिक वैल्यूज अलग हो जो उनके चुकी हैं. सोल पर्पस है, सोल के जो डायमेंशंस होंगी सोल और सोल वो. पर्पसेस हाँ. अलग हो चुके हैं. हम्म. कंपैटिबिलिटी बहुत सुंदर है, राइट. बट इसके लिए कुछ बट अलग तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी ने कॉम्प्रोमाइज आपको कितना कर लोगे. हाँ जी, क्या.
कुछ अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। किसी ने भेजा था कि चलो विभा के पास भेजते हैं, दे दे हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, वो आया, उन्होंने कंफर्म कर दिया, आप अलग ही हो जाओ। 80% मैं वापस कहती हूँ, 10 में से 8 को बोल देती हूँ कि भैया ये रेक्टिफाई है, आओ 5-6 सेशन, एंड दे हैव बीन फाइन एंड टच वुड, बच्चे भी हुए, बढ़िया सो भी हुए, ब्यूटीफुल। सब कुछ ठीक-ठाक एंड सो ब्यूटीफुल। बट दो को मैं बोलती हूँ, मैं 1-2 सेशन सुन लिया और उसके बाद मैं कहती हूँ देखिए, यू कैन कंटिन्यू इंडिविजुअली, आ जाओ, लेकिन यहाँ पे ना कुछ झोल है बहुत बड़ा। और झोल ये है कि यू स्टॉप लिविंग टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप नहीं है, राइट? सो ब्यूटीफुल। कंपेनियनशिप के लिए शादी है ना, कंपेनियनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है। हम्म। रिस्पेक्ट, यू कांट चेंज, हाउ कैन यू चेंज एनीबॉडी एल्स, यस, राइट? वेरी वेरी हम वेरी एसेंशियल। हम हाथ की एक ये 5 से छठी उंगली तो नहीं बना पाए ना, 2 नाक तो नहीं आ पाए। गलती से हो जाएगा तो वहां पे पूरे पूरे पहुंच जाएंगे, चढ़ावा चढ़ जाएगा। एक उंगली का नाखून भी आज बना नहीं पाया इंसान अलग तरह से खुद, राइट। राइट? क्लोनिंग जरूर कर ली है, वो भी वहां से लाके क्लोनिंग की है, डॉली जो हम्म। शीप बनी थी, बट येट can't transform and change in a different way, but you can adapt in a different way. I can choose कि मेरे नाखून सुंदर हो, मेरा सब ठीक ठाक है, बीमारी नहीं है, तो मैं कौन सा पेंट आज लगा लूं या बिना पेंट चली जाऊं, क्या हुआ, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वो छोटी सो चीजों का, ब्यूटीफुल। वो वो रिश्ते में भी वही है कि दोनों का समझ, दोनों के ये जानना कि तुम साथी हो, तो कभी एक सारथी बनता है तो कभी दूसरा सारथी बनता है। 50-50 जिंदगी नहीं होती है, कभी किसी को 60, किसी को 80% करना पड़ता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन खूबसूरती बैलेंस वैल्यूज का है। वो जो सीसा होता है, वो वैल्यूज एक हो। कोई डिफरेंट भी है तो दूर बैठा है तो उसको जरा ज्यादा वो करना, पर पास बैठा है कम हो जाएगा, लेकिन दूर बैठने में भी व्हाट होल्ड्स इट, that stone, that pillar which holds the two together in the seesaw also, वाह, सो right? सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल विभा, फॉर शेयरिंग दैट इनसाइट। अच्छा, आपसे जब कोई लोग इंटरेक्ट करते होंगे, आई अंडरस्टैंड आप फेलिसिटेशन करते हो, आप यू डू कोचिंग प्रोग्राम, बट एज आई नो आप रिट्रीट्स भी करते हो। सो टॉक अबाउट योर रिट्रीट्स, कि किसी के साथ आपको थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, एजुकेशन चाहिए हो, तो हाउ दे कैन लर्न। हाँ, मुझे वर्कशॉप्स अच्छी लगती हैं। मैं जैसे हीलिंग मोडालिटीज़ से पहले रेकी, प्राणिक, हिप्नोथेरेपी, क्लैरवॉयंस, टैरो, क्रिस्टल्स, ये सारा कुछ एक सफ़र शुरू हो गया था 2000 में, और फिर आके एक शैमनिज़्म आया, और मैं माइकल हनर से शैमनिज़्म करके आई, पूरा कोर्स करके आई, और फिर क्या हुआ कि और फिर मैं शांत हो गई, क्योंकि तुम्हें अपने आप को डिसरप्ट करना पड़ता है। कोई एक अंडरस्टैंडिंग, वही तुम इसे कॉम्प्लिसेंसी कहो या उसे पॉजिटिव में डिसरप्शन कहो, कि ओह अच्छा, ये समझ आया शायद कुछ, और फिर तुम अपने आप को क्रिएट करते हो। तो मुझे इसकी समझ भी धीरे धीरे आने लगी और अभी भी आ रही है। सो मेरी 3-4 रिट्रीट्स हैं जो मैं, कभी क्लोज ग्रुप्स में लोग मुझे बुला लेते हैं, कभी मैं अनाउंस कर देती हूँ। तो 4 जो हैं, जो मुझे लगता है कि मैं आगे भी करती रहूँगी। एक रही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जो अभी पीछे की थी, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उसमें ये है कि हम पहले डिस्रप्ट करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम्स हमें तकलीफ दे रहे हैं, बिलीव्स ही हमें बनाते हैं। कहते हैं अगर किसी को आपने हराना है, किसी की सोच बदलनी है, उसके बिलीफ छीन लो, उसको समझ ही नहीं आएगा। आप बिलीव, जैसे एक लड़की इस घर से उधर जाती है और नए बिलीव देती है, वो बेचारी आधा टाइम तो घूमी रहती है, भी नाम भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, गोत्र भी चेंज हो गया। अब कहते हैं जी हम यहाँ पे प्याज नहीं डालते, अच्छा प्याज नहीं डालते तो क्या डालते, मतलब मैं बेसिक में बता रही हूँ, खाना चेंज हो गया, भाषा चेंज हो गई। तो उसके लिए देखो, एक उसके लिए कितना ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है वो, फिर वापस घूम के जाती है, राइट? तो मैंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करके एक मेरी वर्कशॉप, जहाँ पे हम अपने आप को सो ब्यूटीफुल। डिस्ट्रक्ट करते हैं, और जो चीजें हमें नहीं चाहिए आज, क्योंकि हम हमेशा बदलते हैं, ट्रू। हर हर वो स्प्रिंग में नए, बसंत में नए पत्ते आएंगे, सावन में कितनी चिड़ियां चहचहाएंगी, और सारा कुछ, मोर भी अपने में है, सब अपने में घूम रहे हैं। सो एक खूबसूरती आती है। सो हर हर पौधे में, पतझड़ में अपनी खूबसूरती है, और हम तो हिंदुस्तान है, वहां 4 अगर मौसम है, हमारे 6 मौसम है यहाँ पे,
राइट। सो तो Yes. बहुत सुंदर सी ये हमारे हर वक्त की एक बदलाव चीज़ है। तो एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मेरी, और फिर मैं उसे क्रिएट मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ। पहले डिस्ट्रक्ट और फिर मैनिफेस्टेशन। हाँ, वो 2-3 दिन की एक बहुत ही मज़ेदार सी होती है, जहाँ मेडिटेशन भी है, विजुअलाइज़ेशन भी है, फायर सेरेमनी भी है, वाटर सेरेमनी भी है, और काफ़ी कुछ शेयरिंग है उस टाइम में, राइट? Okay. चैंटिंग भी है और साइलेंस भी है, वॉकिंग ऑन ग्रास भी है, और सो मेनी एक्टिविटीज़, यू क्रिएट योर थिंग्स। एक वो है रिट्रीट। एक मुझे बैलेंसिंग ऑफ शिव शक्ति, यिन यांग एनर्जी, ये मुझे मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी, जो ये सहजारा, क्योंकि मैं चक्रास के साथ काम करती हूँ, बहुत मेरा काम रहा और मुझे एंजॉय करती हूँ मैं उसे। सो वो वाली चीज़ मुझे, जो एक मुझे रिट्रीट बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तीसरी है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे अपने में है, आप अपने एक पावर गेम है, और एक है एम्पावर, मैं हूँ और मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ और मैं फील करता हूँ और मैं देखता हूँ और मैं सुनता हूँ और मैं नहीं सुनता हूँ और मैं नाराज हूँ और मैं हर्ट हूँ, और तब भी मैं अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकता हूँ और कह सकता हूँ, अपना सच बोल सकता हूँ। तो ये True. एम्पावरमेंट, right? This is very intense again. And the fourth one is womb healing, which I probably recently I would be. So साल में ये 4 मुझे है कि ये मुझे करनी है, और मैं करना हमेशा एक मुझे रहता है। वो हीलिंग है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो हम, यही नहीं कि हमने पेट में जब बच्चा आता है, जो पहली धड़कन है, तो वो आत्मा जब आती है, तो वो कौन से एक्सपीरियंस करने आती है, और वो वूम ढूँढती है, वो पेरेंट्स ढूँढती है, जो पिछले जन्मों के एक्सपीरियंस उसके रह जाते हैं। तो वो ढूँढती है और उस घर में पैदा होती है, और जितनी जल्दी वो कर ले, उस तरफ वो रोशनी की तरफ पहुँचती है, लिबरेशन की तरफ। तो ये वूम हीलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो वापस वूम में जाया जाता है और उससे बातचीत होती है। तुम अपनी मदर से और मदर अर्थ से कनेक्ट होते हो, तुम अपने पैतृक भाव से अपने फादर से कनेक्ट होते हो, क्योंकि सब कुछ जेनेटिक आता है, डीएनए में आता है। तो ये भी एक इंटेंस है जो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है लोगों के साथ, क्योंकि जब मैं पेट में हूँ तो मेरी माँ क्या महसूस कर रही थी या उसके क्या था, राइट? तो वो वहाँ से सारा कुछ रिश्ता, उनका रिश्ता, उनके माँ बाप के और तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता, सब कुछ वो वूम में जो वो आत्मा आई, ये वाला एक इंटेंस है। ये 4 रिट्रीट्स मुझे लगता है कि क्या मज़ेदार बात और ट्रांसफॉर्मेटिव बहुत और रहती हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब आई थिंक आपकी हर वर्कशॉप में यू आर कवरिंग एवरी डायमेंशन ऑफ सोल, चाहे उसको हम वैल्यूज से करें, चाहे डिस्ट्रक्शन से करें, but so beautifully you are covering all aspects. My last question, I understand there must be many questions by the audience, but I think you have answered most of them already in one format or other. लास्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ फैसिलिटेटर, एज अ एजुकेटर, जब हम दूसरों को नॉलेज देते हैं, समटाइम हाउ डू वी अचीव और व्यू आर अचीवमेंट कि हमने लाइफ में क्या पाया? तो हाउ डू यू इवेल्युएट, और द वर्ड कुड बी मोर ब्यूटिफुल फ्रॉम योर साइड, बट what is your achievement? How do you consider your, what is your achievement? विकास, मेरी अचीवमेंट जो मैं अपनी नज़रों में देखती हूँ, वो ये देखती हूँ कि आज मैं शायद खुश नसीब हूँ कि मैं उस अंडरस्टैंडिंग में आ रही हूँ कि एवरीथिंग फ्लोज एंड एवरीथिंग चेंजेस एंड एवरीथिंग ग्रोज, राइट? मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं उस अंडरस्टैंडिंग में आ रही हूँ, नोइंग में आ रही हूँ कि नॉन जजमेंट एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि कौन पता नहीं किस किस से गुजरा है, किस टाइम से गुजरा है, ज़माने की नज़रों में ही नहीं, अपनी नज़रों में। True. सो मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि मैं उस बैलेंस को समझ पा रही हूँ। अभी भी जर्नी है, बट ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं समझ पा रही हूँ, एक कंपैशन का मतलब समझ पा रही हूँ, एक फॉरगिवनेस का मतलब समझ पा रही हूँ, और एक कोर को, कि तुम्हारा कोर जैसे पृथ्वी की एक्सिस है, जैसे सूर्य है, सन है, बट इस टाइम अगर 5:45 दिल्ली में, हिंदुस्तान में हुआ है, तो अमेरिका में कुछ और होगा, जापान में कुछ होगा, हांगकांग में कुछ होगा, True. मेक्सिको में कुछ और होगा समय, राइट? वो धुरी भी है और उस पे एक्सेस है,
और जब वो अपनी दूरी अपना 24 घंटे करके फिर से पहुंचेगी तो सूर्य वही मिलेगा। तो मैं ये अचीवमेंट समझ रही हूँ कि मुझे वो सूर्य भी समझ आने लगा है कि तुम है, तुम्हारा अपना सूर्य, तुम्हारा अपना नॉर्थ मुझे समझ आने लगा है। तो ये मैं अपनी अचीवमेंट मानती हूँ कि ये समझने लगी हूँ, अभी भी समझ रही हूँ। और इस बैलेंस को, अलाइनमेंट को, कि यिन यान एक है, सुख और शांति। अगर सुख आदमी अगर मैस्कुलिन है तो शांति फेमिनिन है ना? सो तो उसको मैं शायद समझ रही हूँ। क्या बात सो है। वो मुझे लगता है कि यही है कि कंपैरिजंस नहीं, इट्स मोर ऑफ बीइंग होल्डिंग हैंड एंड अलाइनमेंट। जैसे रूट से रूट जुड़ी होती हैं जंगल में, कहते हैं ना वृक्षों की रूट से रूट। Great. सो वो समझ आ रहा है। सो ये मुझे लगता है कि ये एक मेरी अचीवमेंट है। मैं किसी सूफी से मिली, एक मैं एग्जांपल दूंगी। हाँ जी। और मेरे से उन्होंने पूछा और उन्हें बातचीत हुई, अघोर थे, और फिर मैं सूफियों से मेरा मुझे ऐसी मुलाकातें रहीं। तो पूछा कि अच्छा बताओ कि एक फल कब पक जाता है? तो मैंने सोचा कि एक फल कब पक जाता है, हाँ जब उसका समय हो जाता है, जब पेड़ से गिर जाता है। सो मैंने कहा आप ही बताइए ना। सो कहते हैं कि एक फल तब पकता है जब उसका हर बीज इतना परिपक्व हो कि वो नए वृक्ष को जन्म देने की क्षमता रखता हो। सो एक फल तब पकता है जब उसका बीज ऑर्गेनिकली इतना पूर्ण हो जाए कि जब वो एक एक फल में से एक अमरूद से इतने बीज निकलेंगे, वो हर बीज में इतनी हिम्मत है कि कई पेड़ निकल आएंगे। सो वो पूरी तरह से पकना है, राइट? सो तो ब्यूटीफुल। अगर इंसान की कोख में 9 महीने का बच्चा है तो हिरन का 6 से 9 महीने, या मुर्गी का 21 दिन का हम सुनते हैं, और हम हथनी हाथी का सुनते हैं कि 18 से लेकर 20 महीने का है। तो हर किसी की टाइम, पेस, स्पेस, ये बहुत अलग होती है। व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, ये एक अलग होती है। तो ये मेरी अचीवमेंट है कि शायद मुझे ये समझ आने लगा है कि मैं जज नहीं करती हूँ। बस दैट्स इट। वाह। मैं वेरी वेरी वैल्यूज अब ब्यूटीफुल। मैं वैल्यूज में डाल सकती हूँ इवैल्यूएशन, शायद अभी क्या बात इतनी बिजनेस वुमन नहीं बनी कि हर चीज इवैल्यूएट कर लूं, लेकिन वैल्यूज में डाल सकती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। वी हैव अ कमेंडेशन फॉर यू। सो मिस्टर संजय के जैन हैज सेंड अ कमेंडेशन। ग्रेट। एंड एज आई नो हिम पर्सनली, सो ही इज द chairman of TT Industries. So great to have your message, sir. My last question, because we are heading towards closure of this program right now. What is your last message for people who are having relationship issues? What they can do immediately? कि अभी जब उन्होंने इस चीज को देखा होगा, उनको लगा होगा रिलेशनशिप मैटर्स, आज विभा से कुछ ऐसा पता चलेगा कि आई कैन स्टार्ट अ पॉजिटिव स्पाइरल फॉर माय लाइफ, तो आज वो क्या करने लग जाएं जिससे वो उनकी रिलेशनशिप इंप्रूव होने लग जाए? पहली चीज, अपने रिक्त स्थानों को पहचानो। वो वाक्य पता है, लेकिन रिक्त स्थान जो रह जाते, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कहाँ पे वो वॉइड्स रह गए हैं अपने अंदर। चाहे वो बचपन से तुम्हारे तुमने अपने पेरेंट्स का रिश्ता क्या देखा और उससे क्या समझा, क्या रिश्ता, क्या शादी ज़रूरी है और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या ये देखा, जैसे मैंने अपने माँ-बाप में बहुत रोमांस देखा कि बहुत खूबसूरती से इंडिपेंडेंट है, तो क्या तुम में वो बढ़ते हुए में तुम्हें क्या बोला गया? तुमने रिश्तों में क्या देखा, घर की होम डायनामिक्स में, कि आपके माँ-बाप का रिश्ता अपने साथ, एक-दूसरे के साथ, उनका उनके साथ जब फादर बाहर चले गए या मदर बाहर है, तो वो कैसे अपने साथ अपना समय बिताते हैं और लेडी अपना समय कैसे बिताती है, राइट? और उनका रिश्ता और परिवार के सदस्य के साथ, अपने साथ, अपने परिवार के सदस्य के साथ वो क्या रहा, और वो कहाँ पे हर्ट्स हैं, कहाँ बिलीफ सिस्टम्स पे छोटी-छोटी बातों को कहाँ रोक दिया गया, चाहे मज़ाक में, चाहे व्यंग में।
उन चीजों को पहचानो, और डरने की बात नहीं है. इट्स ओके टू बी वल्नरेबल. इट्स ओके टू से दैट आई एम हर्ट एंड आई नीड हेल्प. इट्स ओके कि मुझे वो याद आया कि ऐसे एक ग्लास टूटा था गुस्से में और मैं डर गई और मैंने बात करनी बंद कर दी पापा से या मम्मी से, कुछ देखा. So it's okay. Can be an Yet to understand that life means to, you have to give meaning to life. So if you have understood, if you have recognized that, then उसको घाव बना के खुद खुरेदो मत. उसको मरहम भी लगाओ, उसको समय लगता है, उसका इलाज भी करो, और खुद भी उसमें पूरी की पूरी ताकत डालो कि ये पूर्ण हो और वापस उसमें ताकत आए और फिर फ्लो बने, उसमें पूरा स्किन आए. जैसे हड्डी जुड़ती है तो वो फ्रैक्चर होता है तो पहला फर्स्ट एड है, भैया आप नीचे एक फट्टा लगा दीजिए. yes. कुछ नहीं करता डॉक्टर, बस एक प्लास्टर बांधता है, फट्टा लगा दीजिए, टक उसे जोड़ता है और वो अपने आप हील होती है. बट पहला रिकग्नाइज करे कि वहां क्रैक है या क्या है. सो रिश्तों में ये समझिए कि आपकी स्टोरी क्या रही, आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, कहाँ आप चुप हो गए या कहाँ आप चुप कर दिए गए, कहाँ ख्वाहिशों को दबा दिया गया या ख्वाहिशों का खुद ही गला घोट दिया गया. एंड इट्स क्या ओके. बात है. क्या ख्वाहिशें बड़ी हुई और ज्यादा बढ़ गई किसी वजह से, चाहे वो नीचे है चाहे ऊपर है. देयर इज नथिंग लाइक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. दे से इट्स ऑलवेज इंफीरियरिटी. सुपीरियोरिटी तो फिर आप कुछ भी, एक बहुत पूरा बहुत खूबसूरत. ग्लास है तो सुपीरियर पूरा भरेगा तो ओवरफ्लो होगा, आधा भर सकता है, राइट. Understand. So everything stems out of that void. Understand your thing, what you want to be and what you don't want to be, and your partnership. It is a partnership. और उसमें कभी कोई परसेंटेज कोई ज्यादा होती है, कभी कट होती है. वहां पे माफी भी जरूरत है, दूसरे को नहीं अपने आप को भी, और फिर एक जी. नई उम्मीद से दोबारा. मैं टेड लासो एक सीरियल देख रही थी एप्पल टीवी में, बहुत खूबसूरत एक सीरियल है, आई रिकमेंड सब देखें. और उसमें वो कहता है बी अ गोल्ड फिश. इट्स अ कोच टेड लासो, अमेजिंग सीरियल. सो इट्स लाइक बी अ गोल्ड फिश. हाँ समझ आ गया, और अगर आपको समझ आ गया है देन टेक एफर्ट्स, हैव दैट करेज, स्ट्रेंथ टू फर्स्ट फाइंड योरसेल्फ. अपने आप को पहले रोशनी दो, दूसरे करो, रिश्ते को संभालो और फिर आगे बढ़ो. और अगर नहीं होता, क्योंकि रिश्ता रिस्पेक्ट से है, रिश्ता सेंसिटिविटी से है, रिश्ता मारने से, हैमर से नहीं. उसको ठुक ठुक हम्म. ठुक, वो जो कील लगाते हो ना, तो ठुक 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 थोड़ा थोड़ा है. रिश्ता खूबसूरती से, वो जो फोटो अपनी जो रिश्ते की टांगनी है तो कील भी मजबूत होना चाहिए, राइट. So तो true. उस चीज को समझो एंड एवरीथिंग चेंजेस. सो वो जब हर शादी में भी वो एक चेंज आता है, क्योंकि आप बड़े होते हो, आप बाहर जा रहे हो वापस आ रहे हो. सो अपने आप पे गर्व करो, अपने रिश्ते आपको पे गर्व करो और उसे ताकत दो. एक पौधे को आप पानी नहीं दोगे और धूप लग गई तो आप छांव, ऊपर आप वो ग्रीन कपड़ा कर सकते हो, तो अपने रिश्ते को क्यों नहीं छांव दे देते हो, धूप से बचा लेते हो. So this is what I want to say. Have Wow, beautiful so relationship beautiful. with yourself and value other person. And if you feel that it's time that it's not, then have courage to say that it's not working also. Have courage to be independent, not to put other person down, but to make it grow. Right? बहुत I would बहुत just ask खूबसूरत. कि आपको सबसे अच्छा कब लगता है आपका पार्टनर. जैसे मुझे, मैं अगर सोचूं, अगर तो मैं कहूँ जब वो अपने पूरे एलिमेंट में हो तो मजा आता है अपने पार्टनर को देखने में. जब अपना बच्चा पूरे एलिमेंट में तो मजा आता है. तो उसके एलिमेंट्स मत खींचो, उसको सुन लो, उसको उसके नजरिए से भी तो देखने की कोशिश करो. इधर नहीं उधर खड़े हो, एक बार देखो तो सही. पार्टनरशिप है बहुत खूबसूरत चीज है. बहुत, जिनके पास नहीं है वो तरसते हैं और जिनके पास है वो भी तरस रहे हैं. तो ये तो पहले अपने आप को भर लो, हर लो, हर लो. बरसात है, सावन है, हर लो. तो बीज डालोगे तो अंकुरित तो हो ही जाएगा, मिट्टी तो ठीक हो ना, है ना. तो राइट दिस इज राइट. व्हाट आई फील. सच अ ब्यूटीफुल मैसेज. हाँ जी. तो जैसा आपने कहा, यस, जैसे आपने कहा कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जिसके पास है उसको भी है, दिक्कत है, और जिसके पास नहीं है वो भी कुछ कह रहा है. सो तो ये विद दैट जानो, ब्यूटीफुल. जहां तो खुद ही बनाना है ना. राइट. नए खुद. ऑफिस में जाते हो तो टेबल तो अपनी खुद एडजस्ट करते हो, फोटो भी लगाते हो. वो डेस्क, वो जो डेस्क एरिया है वो आप अपना खुद बनाते हैं.
हर किसी क्या के बात है। किचन का अपना है, हर किसी का अपना स्वाद है। उसको खुश मिजाजी आपकी, आप शादी करके लाए हैं पार्टनरशिप में, आप अपनी मम्मी नहीं लाए हैं। अब मम्मी की तरह प्यार मत सोचिए। आप अपने पापा से शादी नहीं कर रहे हैं, राइट? इट्स अ पार्टनर where you grow together, where you may have, differences, you may, but indifference na ho jao. That's what I राइट, feel. राइट। Respect each बहुत other. It's बहुत your बढ़िया। partner, not your एक father or mother. Let's यस, understand. That's respect. इसी से एक बात याद आती है कि मतभेद होना एक बात है, मनभेद नहीं होने चाहिए। So beautiful. तो और यू कैन जितनी हैव जल्दी हो डिफरेंस ऑफ उसको, ओपिनियन। और जितनी जल्दी हो उसको भी पूरा करो। हाँ अगर जी, हाँ चाहते जी। हो रिश्ता तो सब करोगे, और अगर नहीं यस, चाहते हो तो हिम्मत रखो, बाहर निकलो। फिर डरना क्यों? आइदर वे करेक्ट, डरना क्यों? करेक्ट, करेक्ट। तो सबसे जिस जिस ढंग से आपने इसका आखिरी प्रश्न का जवाब ढूँढना शुरू किया था कि अपने रिक्त स्थान को ढूँढना। तो विद दैट मैसेज, दैट इटसेल्फ इज़ सच अ ब्यूटीफुल मैसेज कि अपने आत्मा के रिक्त स्थान को ढूँढना, कि क्या रिक्त रह गया है और उस पे काम करना। विद दैट मैसेज वी वुड लाइक टू क्लोज दिस प्रोग्राम। Thank you, Vibha, again for joining us on this show. Audience, Thank you, in case, Vikas. thank you very much. And in case you have any other question, audience, I know the conversation itself was so interesting, but अगर आपके और भी कोई प्रश्न होते हैं तो आप नीचे chat box में आगे भी लिख सकते हैं. We'll try to make sure that your questions are answered. With that message, thank you very much. बने रहिए विकास जैन शो के साथ. Thank you, Vibha, again. Thank Bye you. bye. Thanks a lot. Thank you, everybody, for joining me.